Hello. Morning, sir. Okay. So now you see, one piece of advice to everybody. I'm glad to see that enthusiasm, right? आपका enthusiasm देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. I'm flooded with responses. Still, people are greeting me good morning, right? So that's wonderful. But one etiquette that you all need to understand is that you will not unmute yourself and speak, because you know what? You are almost 88. आप करीब 90 लोग हैं, और अगर हर कोई unmute करके बोलेगा तो क्या होगा? बात समझ में नहीं आएगी और उतना अच्छा सेशन हो नहीं पाएगा. सो इफ यू हैव एनीथिंग टू रिस्पॉन्ड, मैं आपसे कुछ पूछूं, आप उसका जवाब चैट ऑप्शन में देंगे. अगर आपको कुछ पूछना है तो यकीनन वो भी सवाल आप अपने चैट ऑप्शन में लिख के देंगे, है ना, सो दैट आई गेट टू नो दैट वी आर लिसनिंग, आई मीन दैट कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, राइट? बट इफ यू अनम्यूट and start talking, what will happen? There will be huge chaos and of course inconveniences that will be facing, right? So to avoid that, what you're going to do, you have to mark your responses in the chat option. Is that clear? Quickly write yes in the chat option, but do not unmute. Write yes in the chat option if it is clear to everybody. Yes, right, wonderful. Now guys, before I start the session, let me tell you, see, your responses are very, very important, right? Your responses are very, very important. Why important? Because I'll get to know that students are very, very enthusiastic, right? And if you're not enthusiastic, I'll get a very negative impression, you know? So it is very, very important for you all to project a confident, positive, and a powerful impression of yours. Hence, you have to ensure that throughout this session, for the next 4 hours, you will have to keep your enthusiasm running, which is very, very important, and only then the learnings will happen. All right. So, chalo, let's begin the session. Now, before I start off, I just want to know, आपको क्या लगता है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते? Is there anything in this world that you feel that you cannot make people explain or understand? Yes or no? क्या ऐसा कुछ भी इस दुनिया में जो आप लोगों को नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते? नो, मतलब सब कुछ समझा सकते हैं, राइट? सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ समझा सकते हैं, राइट? इज दैट द आंसर? यस? ओके, so 50% if you're writing yes, 50% if you're writing no. So let me tell you guys that yes, of course, it is possible, right? You can make people understand whatever you want. You can make people explain, I mean, you can explain people whatever you want. It is only if you are a very, very good communicator. अगर आप एक अच्छे communicator हैं, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं. आप वो सब कुछ समझा सकते हैं जो आप समझाना चाहते हैं. वो आप सब कुछ उनको दिखा सकते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, right? So a good communicator has all these attributes. So today's session, guys, is all on communication skills, right? कम्युनिकेशन स्किल्स पे आज का सेशन है. बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जो अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं वो एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं. क्या आपके भी यही ख्यालात हैं? डू यू थिंक दैट ऑल दोस हु आर गुड इन इंग्लिश आर गुड कम्युनिकेटर्स? नो, राइट? ओके. Why no? Because English is just a language and communication is something else, right? English, Hindi, Bihari, Avdi, Maithili, Marathi, right? Bundelkhandi, these are all languages. And what is communication? Communication is an art of keeping your views, right? Communication is an art. Communication एक कला है. So, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, उर्दू, ये सारे महज भाषाएं हैं, right? आप भाषा में आपका कितनी भी अच्छी पकड़ हो आपकी, right? No matter that how strong hold you have in on the languages, but if you're not good in communicating that language, of course you'll never bring that difference, right? So what is important? Important is to be a good communicator, right? आप बिहारी बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना, और आपको लोग सुनते हैं, तो यकीनन आप एक अच्छी कम्युनिकेटर हैं. आप भोजपुरी बहुत अच्छा बोलते हैं और आपको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं आपको, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, राइट? आप मैथिली अच्छा बोलते हैं, आपको लोग सुनते हैं, आप यकीनन एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, है ना? बट इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए. इंग्लिश इज समथिंग which is very, very important. English is the necessity today, right? रोटी, कपड़ा और मकान हमारी 3 जरूरतें थी, हुआ करती थी.
लेकिन आज के जमाने में अगर आपको रोटी जुटानी है, आपको कपड़ा खरीदना है, या फिर आपको आपका अपना मकान होना चाहिए, तो एक जरूरत जो सबसे पहले आपको पूरी करनी होगी वो अंग्रेजी की। इंग्लिश हैज बिकम द नेसेसिटी। यू गाइस ऑल कम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, एंड कहीं ना कहीं आप किसी आईटी कंपनी में जाएंगे। कल को मान लीजिए आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी लैंड करते हैं, है ना, तो उस गवर्नमेंट जॉब्स में भी एक्सपैंड करने के लिए, या फिर आप प्राइवेट कोर प्रोडक्ट कंपनीज में जाते हैं, वहां पर भी एक्सपैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? इंग्लिश, राइट? बट इंग्लिश सिर्फ बोलने वाली इंग्लिश नहीं चाहिए आपको, राइट? यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश, राइट? जिस तरीके से आप बिहारी बोलते हैं आप अपने क्षेत्रों में, और लोग आपको पसंद करते हैं, सुनते हैं, जिस तरीके से लालू जी को लोग पसंद करते हैं जब वो बोलते हैं, है ना, तो वो एक कमाल के कम्युनिकेटर है ना। अब वो किस तरीके के व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व कैसे, वो मैं नहीं जानता, बट यस ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, ओनली बिकॉज जब वो बोलते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं, सुनते हैं। सिमिलरली यू ऑल have to ensure that you all become a very good communicator, right? तो जाहिर सी बात है, communication comes first and then comes your language. But यहाँ पर क्या है, हम साइड बाय साइड चलेंगे, we'll take parallelly communication और ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो दोनों हम करेंगे, right? Because that is something which is very very important, right? So guys, today's session is all on communication. Now before I start off, I just want to know, what do you think? What is communication? What is communication? Can you mark your responses in the chat option? I know that everybody has the definition. Everybody knows the definition of communication, right? But even then, can you tell me what is the definition of communication? Quickly mark your responses in the chat option. Chat option में अपने responses जल्दी से लिख कर बताइए. It is an art to express our feeling, right? Yes. Adil says it is the art of presenting oneself. Yes, correct. Abdullah says way of interaction. Halal says, okay, response ऊपर चला गया. Express own thoughts to other. Establish the connection between 2 points for sharing information. Transfer the personal feelings to other. Oh my God, only personal feeling? Prazul says express ourselves. Pappu says to express. Okay, great. So everybody's writing that communication means a process to make understand to other, and you also. Okay. And Shamul, theek hai. Expression of thought, right, Rahul? Okay. So now, guys, let me tell you. These are all bookish definitions. ये definitions हैं, right? और वो भी ये जो definitions आप लिख रहे हैं, transferring thoughts from one person to another, exchanging views, interchanging ideas, ये communication नहीं है. हम यही पढ़ते आए हैं, right? आज तक. But this is not communication, guys. It is transmission, right? ये transmission है. Transferring thought from one person to another, interchanging ideas, exchanging views from one person to another is transmission. It is not communication, Banu. So what is communication then, Abhishek, Kamul? Let me tell you, communication का मतलब होता है वो जो आपको कुछ meaningful result दे. Something that gives you meaningful result is communication. मान लो आपने बीटेक, आपने फैसला किया कि आप बीटेक करेंगे, राइट? जो कि आपने किया होगा, आप में से बहुत सारे. और बीटेक आपने सोचा कि बीटेक के बाद आपकी यकीनन कहीं ना कहीं कोई अच्छी नौकरी लग जाएगी या फिर आप सफल हो जाएंगे. अब हुआ क्या कि बीटेक के बाद आपकी नौकरी नहीं लगी. सो वो जो कम्युनिकेशन जो आपने आपसे खुद से किया था, वो कम्युनिकेशन आपका गलत हो गया, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग मीनिंगफुल रिजल्ट्स. मिसाल के तौर पे सद्दाम, श्रवण, अगर मैं आपको पढ़ाऊं 2 + 2 = 4 और उसके एवरेज में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं 4 + 4 = कितना, अगर आपका जवाब 8 आता है तो यकीनन हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन हुआ. लेकिन अगर आपने जवाब 8 के अलावा कुछ और दिया तो क्या हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है? Yes or no? Quickly mark your responses in the chat. Correct, Nisha, Abul, Rahul, correct. Everybody's writing no, right? Why no? Because we are not getting meaningful results, right? We are not getting meaningful results. So that is why communication is something very important. अब आप देखो, मैंने तो पढ़ा दिया आपको 2 + 2 = 4 और मैंने सवाल पूछा 4 + 4 = कितना. मैंने अपना जो थॉट है आपकी तरफ ट्रांसफर कर दिया, मैंने अपना आइडिया आपकी तरफ एक्सचेंज कर दिया, मैंने अपने व्यूज आपकी तरफ इंटरचेंज कर दिया. बट आदिल, सादिक, क्या कम्युनिकेशन हुआ?
नहीं। क्यों अभिषेक? क्योंकि आपका जवाब गलत आया, राइट? थॉट का आदान प्रदान तो हो गया, आदान प्रदान तो हो गया, बट response was negative, was absolutely wrong. So that is communication did not happen. So guys, आज के बाद जब भी कोई पूछे what is communication, उसको हमेशा ये definition बताना और खुद practically implement भी करना, right? So what is communication? Communication is something that gives us meaningful result. Communication is a process where we get meaningful results. Correct, Sharman? Abhishek, Kyamul, समझ में आया? What is communication? Communication is a process, Koinan, that gives us meaningful result. Clear everybody? Yes, right? So guys, देखो, मान लो कल को आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, इंटरव्यूअर ने आपसे कोई सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दिया। अगर किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ वहां पर जाहिर सी बात आपका कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, राइट? आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट जब आप रन करना चाह रहे थे तो वो नहीं हो पाया, तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन फेलियर हुआ। या फिर आपका जो आप टीम के साथ आप मिलकर आप कम्युनिकेशन, आप टीम के साथ कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं बन पाया। हो सकता है देयर वाज अ फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन अमंगस्ट योर टीममेट्स। Ijahir, whatever I want to say, if listener understands correctly, that is communication. Yes, yes. अगर आपका लिसनर जो है, जो सामने वाला है, अगर वो आपकी बात समझ पा रहा है और समझकर आपको वो चीज दे पा रहा है जो आप चाहते हो, तो यकीनन कम्युनिकेशन हो रहा है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है इजाहर, सामने वाला समझ तो लेता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, राइट? सामने वाला समझ गया बट ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। अब वो मान लीजिए वो चीज इजाहर, वो चीज जो किसी और तीसरे आदमी को बतानी और वो बता नहीं पाया, तो क्या कम्युनिकेशन होगा इजाहर? नहीं होगा, राइट? सो इट्स नॉट ओनली लिसनिंग, राइट? सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। लिसनिंग उसका एक इंग्रेडिएंट है उसमें, कम्युनिकेशन, right? Okay, so now let's get started guys. Now what I'm going to do, I will take you through a case study. मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू ले जाऊंगा और उसके थ्रू आपको समझाऊंगा। करेक्ट जाहिर, then he is not a good communicator, right? So उस केस स्टडी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा that if you fail to communicate things properly, then how disastrous can be the result, right? इस केस स्टडी के थ्रू आप ये समझेंगे कि अगर आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाता है तो परिणाम कितना भयानक हो सकता है, आपकी नौकरी तक जा सकती है और पता नहीं क्या क्या, राइट? सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट, बट बिफोर दैट एक और सवाल। गाइस टेल मी वन थिंग, सपोज यू नो व्हाट, इफ आई यूज अ वर्ड दैट यू आर अनफेमिलियर विद, राइट? मैं कोई वर्ड यूज करूं किसी वाक्य में और अंग्रेजी का कोई वर्ड हो और उसका मायना आपको ना पता हो और मैं आपको उसका मायना बताऊं भी ना, तो क्या आप उसका मायना जान पाएंगे? मैं आपको यह भी इजाजत नहीं दे रहा हूं कि आप डिक्शनरी में देखें और गूगल करें। नीदर एम आई गिविंग यू नो व्हाट टू से chance to peep into the dictionary nor Google. Will you be able to tell me the meaning of that word? There is a chance, Abdullah. Sajid, maybe majority of you writing no. Okay. So now guys, let me tell you, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला, if you are a good communicator, you can make people understand whatever you want. Correct, with the help of expression, Jamil, right? Correct. So now guys, what I'm going to do, I'm going to use few words in a sentence. I'm going to use 5 words, right? मैं वो words chat option में लिख भी दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको गूगल नहीं करना है, क्योंकि आप सब क्या करेंगे, यू ऑल हैव गूगल बाबा इन हैंड, राइट? आप तुरंत गूगल करके आप एक्सप्रेशन, आप अपने रिस्पॉन्सेज लिख देंगे ये सोचकर कि मेरा इंप्रेशन है ना बहुत अच्छा हो जाएगा सर की नजरों में। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जो यूज करूं आप उसका जवाब यहां से सोच कर, है ना, अपने आप को लाचार बनाने के बजाय, गूगल करने के बजाय कि 1 मिनट में मेरा सर के सामने इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, वो ना करने के बाद, वो ना करके आप अपना दिमाग लगाएं, ठीक है? रेडी एवरीवन? शैल आई यूज अ वर्ड? आई एम गोइंग टू गिव यू 5 वोकैबुलरीज। ऑलराइट निशा, ठीक है नीतीश, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सी गाइस, मैं क्या करूंगा, वो वर्ड लिखूंगा, राइट? उसको सेंटेंस में यूज करूंगा
और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको गेस करके बताना है कि उसका मायना क्या है, राइट? ठीक है, चलो फिर। नाउ सी द वर्ड इज, the word is augment, augment. The word is augment, right? Now see, I'm going to use this word और guess करो इसका मायना क्या है. We should augment our communication. We should augment our communication. What does it mean? लिख कर बताओ. Improve, absolutely correct. Increase, very good. और क्या? Improve, increase, और क्या? और क्या? अच्छा चलो अब देखो इसका enhance, absolutely correct रोहित. Enhance, और क्या? और क्या? एक और वर्ड है, मेरी तरफ देखो और गेस करो. There is one more word that starts with E. इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? EX, EX, extend, expand, absolutely correct. अब आप देखो, आपने 5 से 10 सेकंड में आपने augment का मायना ही नहीं, आपने पर्यायवाचियां भी आपने बता दी, right? So only if you are a good communicator, you can make people explain, you can easily make people understand, right? So augment means to improve, to increase, to enhance, to extend, to expand, right? अब देखो दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं. I'm writing the next word. Okay, so the word is can, right? It is K-E-N, can. अब मेरी तरफ देखो और जरा इसका मायना गेस करो. For your understanding, the sentence is, we must augment our can of chemistry. We must augment our can of chemistry. Knowledge, बिल्कुल सही अली. Knowledge. What else? What else? Knowledge. और क्या? एक और वर्ड है जो L से शुरू होता है. What is that? Skill. बिल्कुल सही पप्पू. Skill. Okay, जमील, idea. Correct, correct. Idea. बिल्कुल सही. ठीक है. Well done. Well done. है ना? तो आप देखो, if you are a very very good communicator, guys, you can make people understand. You can explain people very easily. Yes or no, guys? अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर तो आप सामने वाले को सब कुछ समझा सकते हैं. Yes or no? Yes or no, guys? Yes or no, guys? Yes, right? Guys, just give me a minute. Just give me a minute. Yes, all right. So now you see, guys, if you're a good communicator, you can make people explain, understand whatever you want. आप उनको वो दिखा सकते हैं जो आप दिखाना सकते हैं, दिखाना चाहते हैं. आप उनको वो सुना सकते हैं जो आप उनको सुनाना सकते हैं. So everything is possible, right? So now let's get started, guys. Here we go. अब मैं ये केस स्टडी आपको दिखा रहा हूँ. इस केस स्टडी के थ्रू आप ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन कितना महत्व रखता है हमारे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी. पर्सनल लाइफ में कैसे? अगर आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, है ना, तो आपके आस पड़ोस वाले, आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले, है ना, सब आपकी बात सुनते हैं. प्रोफेशनल लाइफ में कैसे? आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, कंपनी में आपका महत्व बढ़ता है, आपका पौधा बढ़ता है, आपका इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वहां पर भी हर कोई आपको सुन रहा होता है. सो चाहे आप पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, हर एक चीज में. चलो मान लो कि कल को आप जो है, मान लो आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपके सीनियर्स होंगे जो सफल नहीं हुए होंगे. गांव में हो सकता है वो एक छोटा सा दुकान ही खोल कर बैठे होंगे, तो क्या वहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती? वहां पर भी पड़ती है. भले छोटी सी फॉर्च्यून की दुकान खोली उन्होंने, लेकिन अगर उनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना हो छोटे से गांव में जहां पर मुश्किल से 200-250 घर है, वहां पर भी उनको क्या करना होगा? कम्युनिकेट करना होगा. सो कम्युनिकेशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Now see, this is a case study wherein the conversation is happening between two persons, right? एक तो कस्टमर है और दूसरा कंपनी प्रोफेशनल है.
एक कस्टमर जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो कुछ बनवाना चाहता है, तो वो कंपनी में जाता है और काफी सारे कंपनी एग्जीक्यूटिव से मिलता है ना। जैसे राहुल है ना, राहुल गया किसी से मिलने, कंपनी में कुछ बनवाना था, तो राहुल सबसे पहले मिला, मान लो टीम लीडर से मिला, राइट। फिर टीम लीडर से बात करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, टीम लीडर ने अपने ऊपर वाले को बताया, मान लो प्रोग्राम मैनेजर से बात करा, फिर प्रोग्राम मैनेजर ने अपने ऊपर वाले से बात करा, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर से बात करा, फिर सीनियर प्रोग्राम मैनेजर से मान लीजिए वो जो है किसी और ऊपर वाले से बात करा, है ना। सो इट इज अ कॉन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन अ कस्टमर एंड वेरियस कंपनी प्रोफेशनल्स, राइट। कस्टमर और कंपनी के कई सारे एग्जीक्यूटिव से बात हो रही है। तो अब आप देखो, हियर वी गो। So there is a customer who had a requirement and this is what his requirement. ये है कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो आप सामने देख सकते हैं, राइट। एक पेड़ है और पेड़ पे एक सीढ़ी नुमा झूला लटका हुआ है। दिस इज व्हाट कस्टमर एक्सप्लेन। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या नहीं ये हम नहीं जानते, ऊपर क्या लिखा है, हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट, राइट। ये वो चीज है जो कस्टमर ने एक्सप्लेन किया। किसको? कस्टमर एक्सप्लेन इट टू द प्रोजेक्ट लीडर, बट प्रोजेक्ट लीडर अंडरस्टूड दिस। नाउ गाइस क्विकली टेल मी, not audible, am I not audible, Abhishek, Shweta, am I not audible, guys? Abhishek is writing I'm not audible. Guys, am I audible to everybody? Quickly write yes. Yes, I'm audible, right? Okay, Abhishek, आप थोड़ा अपना connection check कर लीजिए, right? Yes. Okay, so now guys, you see, अब आप देखो, कस्टमर ने ये एक्सप्लेन किया। किसको? कस्टमर ने ये चीज एक्सप्लेन किया और प्रोजेक्ट लीडर समझ रहा है ये। नाउ गाइस टेल मी, इज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर? क्या ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है? यस और नो? नो, राइट। ग्रेट, ठीक है। तो अब आप बताओ प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रहा है, कस्टमर से शुरू हो रहा है या फिर प्रोजेक्ट लीडर में? कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर इज द प्रॉब्लम स्टार्टिंग? इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम द कस्टमर और इट इज स्टार्टिंग और इट इज विद द प्रोजेक्ट लीडर? नाउ मोहम्मद अली, नीतीश, बाकी सारे लोग, कैसे पता चलेगा आपको कि प्रोजेक्ट लीडर कस्टमर से शुरू, सॉरी, कि प्रॉब्लम कस्टमर से शुरू हो रही है? या फिर ये कैसे पता चलेगा आपको कि प्रॉब्लम प्रोजेक्ट लीडर से शुरू हो रही है? अभी आप ये बात नहीं समझ सकते। चलो अब आप आगे देखो, फिर से मैं दिखाता हूं। दिस इज व्हाट कस्टमर एक्सप्लेन्ड टू द प्रोजेक्ट लीडर। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, आप ये समझ लीजिए, और इसी चीज को उसने एक्सप्लेन किया प्रोजेक्ट लीडर को, राइट। नाउ व्हाट प्रोजेक्ट लीडर डिड, ही एक्सप्लेन्ड, ये जो भी प्रोजेक्ट लीडर समझा वो इस चीज को किसको समझा रहा है? एनालिस्ट डिजाइनर को। एंड दिस इज हाउ एनालिस्ट डिजाइनर डिजाइन। नाउ गाइस, इज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर? क्या ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है? यस और नो? नो, राइट। अब आप आगे देखो, अब एनालिस्ट डिजाइनर ने ये चीज किसको एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेन टू द प्रोग्रामर, एंड दिस इज हाउ प्रोग्रामर रोट इट। इज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर? सादिक, नदीम, इज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर? नो, राइट। अब आप देखो प्रोग्रामर क्या कर रहा है, प्रोग्रामर अपने ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, अभिषेक, ये देखो, बिजनेस कंसल्टेंट को, एंड दिस इज हाउ बिजनेस कंसल्टेंट डिस्क्राइब। इज इट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर? नो, राइट। अब आप आगे देखो, फिर बिजनेस कंसल्टेंट ने क्या किया? बिजनेस कंसल्टेंट ने एक्सप्लेन किया प्रोजेक्ट मैनेजर को, एंड दिस इज हाउ प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्यूमेंटेड। इज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर? नो, राइट। अब उसके आगे क्या? This is how operations were installed. Is this the requirement of customer? No, right? अब आप देखिए, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। This is how the customer was built, right? This is how it was supported. अब guys, आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ, right? This is what the customer really needed. So now guys, quickly tell me, tell me, problem started from where? अब आप बताओ प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? Yes, Rohit, there is a problem in communication, but अभी बताओ, did problem start from customer or from somebody else? Yes, absolutely correct. No, Ali Ahmed, problem started with customer, क्योंकि कस्टमर को एक्चुअल में ये चाहिए था, बट कस्टमर ने एक्सप्लेन क्या किया था? कस्टमर ने एक्सप्लेन ये किया था, राइट? अब आप देख रहे हैं, वो कहते ना,
वो कहते ना अर्थ का अनर्थ, वो कहते ना गुड़ गोबर हो जाना, सो कुछ वही हुआ। नाउ गाइस टेल मी, श्रवण नैयर, बाकी सारे लोग मुझे बताओ, श्वेता, निशा, अगर आप, इफ यू कीप योरसेल्फ ऑन प्लेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, एनालिस्ट, डिजाइनर, भानु, रोहित, टेल मी, अगर आप कुछ और बनाकर देते जो कि अभी कस्टमर के साथ हुआ, क्या कंपनी खुश होती? क्या कस्टमर खुश होता आपके साथ? ये सुनो, इनफैक्ट वो जाता आपके बॉस के पास और कहता कि मैंने तो ये नहीं कहा था, सीधा आपको जॉब से बाहर निकलवा देता, राइट? सो नाउ यू सी, द लैक ऑफ कम्युनिकेशन लेड टू अ डिजास्ट्रस रिजल्ट, राइट? कम्युनिकेशन फेल हुआ, बर्बाद हुआ, और परिणाम कितना भयानक हुआ, राइट? Now guys, you see, customers are always right, you cannot blame them. Now, being an employee of a company, it is your responsibility to understand the actual requirement of a customer. Yes or no? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कस्टमर की पूरी रिक्वायरमेंट आप समझ लें, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस करें, है कि नहीं? Yes or no? Right? Now you tell me, राहुल, प्रीति, बाकी सारे लोग मुझे बताओ, प्रियंका, right? Do you think that was it possible for project leader to understand the actual requirement of customer? Adil, Rohit, was it possible for project manager to understand the actual requirement of customer? Yes or no? Yes or no? तो वो जो लोग yes लिख रहे हैं ना, तो मैं बताऊं बिल्कुल सही जवाब। अरे कितनी बार कहूं मैं कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वो सब कुछ समझ सकता है, समझा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है। ओनली इफ यू वेरी वेरी गुड कम्युनिकेटर, बिलाल, एहतशामुल। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने नो लिखा है, तो एक बात समझ लें कि वो जो एक अच्छा कम्युनिकेटर है वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है? तो अब प्रोजेक्ट लीडर कैसे समझ सकता था? हो सकता था कि प्रोजेक्ट लीडर बना कर दिखाता, सर क्या आपको ये चाहिए, सर ये पेड़ के टहनी से इस तरीके से ऐसा चाहिए आपको, अच्छा कोई बात नहीं, सर क्या ये चाहिए? तो अगर शायद वो दिखाता, कंफर्मेशन लेता, फिर दिखाता, कंफर्मेशन लेता, दिखाता, कंफर्मेशन लेता रहता, तो यकीनन कम्युनिकेशन डेफिनेटली होता या नहीं रोहित, बिलाल? यस और नो? करेक्ट, राइट? सो गाइस, communication is an art. Communication is the need of the hour. Communication is a learnable skill which you all should learn, right? मिसाल के तौर पे ऐसा क्यों होता है, जब आप देखिए क्लास में अगर 50 बच्चा बैठा होता है क्लास में, जब सामने फैकल्टी जब पढ़ा रहे होते हैं, तो पता चलता है सिर्फ 5 से 6 बच्चे ही पूरी बात समझ पाते हैं, 40-45 नहीं समझते। क्यों? ये तो आप सब भी जानते होंगे, आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी क्लास होती है, क्लासरूम सेशन होता है, तो अगर 50 बच्चा है तो 40-45 बच्चा सवाल पूछता ही नहीं है फैकल्टी से, है ना? क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है, थोड़ा इनसिक्योरिटी होता है कि अगर पूछेंगे, कोई हंस दिया, सवाल गलत हुआ तो क्या होगा, राइट? ऐसा ना लोग ये कह रहे बिल्कुल पप्पू है ये लड़का, तो है ना? लेकिन वो जो 4-5 लोग अपनी सवाल, जो उनके दिमाग में अगर कोई सवाल होता है, कोई नॉन क्लैरिटी होता है, कोई डाउट होता है, वो उसको पूछ कर क्लैरिटी लेते हैं, कंफर्म करते हैं वो फैकल्टी से, राइट? और इसीलिए कम्युनिकेशन उन बच्चों के साथ होता है और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो 40-45 लाख, जो 40-45 बच्चे जो सवाल नहीं पूछते और ये सोचते कि अरे चलो बाद में अपने दोस्तों से पूछ लेंगे, अरे चलो बाद में किताब में देख लेंगे, गूगल कर लेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं होता। उनके साथ क्या होता है? ट्रांसमिशन। और वो जो अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं, अपने डाउट्स को कंफर्म करते हैं, क्लियर करते हैं, कम्युनिकेशन हैपेंस ओनली विद देम, राइट? सो गाइस, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कंफर्म अगेन एंड अगेन until you reach to the clarity. अब ये नैयर अभिषेक, मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप सब प्रीडैक कर रहे हैं, बाद में आप पीजी डैक में जाएंगे या फिर और भी अगर कोई प्रोग्राम होगा आप उसमें जाएंगे, तो जरूरी है कि आप चाहे सेशन आप हमारा करें या आप किसी का भी सेशन करें या फिर इन फ्यूचर में आप कोई भी सेशन करें, आप जितने अपने डाउट्स को कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना यकीनन हम सब के लिए भी बहुत बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप अपने डाउट जितने क्लैरिफाई करेंगे, आपका जो सक्सेस परसेंट है ना आगे बढ़ने का, वो और बेहतर होता जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ राहुल, अवधेश? यस और नो? आदिल? राइट, यस आदिल, करेक्ट।
So guys, it is very very important for you to confirm all your doubts, right? और जो पिछला बैच था अभी वो कमाल का बैच था और यकीनन उसमें प्लेसमेंट्स मेरे ख्याल से लगभग सभी का हो गया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हृदय बाबू, है ना? शायद इतना बेहतरीन प्लेसमेंट शायद नहीं हुआ होगा पहले कभी, राइट? सो गाइस, आई गेस those students were very very they were very very curious. और मैं चाहता हूँ सादिक, नादीम, कि आप सब जितने भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं ना, वो सब ऐसे ही हो. Yes, all have qualified for PG DAC, correct. राइट? ये एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है हम सब के लिए, है ना, कि हर एक बच्चा पीजी डैक का वो क्वालिफाई कर गया. सो दैट इज ओके, ग्रेट. सो नाउ गाइस, लेट्स मूव अहेड एंड हियर वी आर. नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ. नाउ उसके पहले अब हमें क्या एनालाइज करना है? Everybody knows that this is what the customer really needed. So everybody knows that there was a problem in communication. So now guys, can anybody tell me what went wrong? कोई मुझे बताएगा? आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हुआ कि कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में तब्दील हो गया? Can anybody tell me what went wrong? Can anybody tell me what went wrong? ओके, ठीक है. लैंग्वेज, राजनिवास, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में क्या? लैंग्वेज में क्या? लैंग्वेज में क्या? ओके, फियर. चलो एक एक करके बात करते हैं ना, चलो एक एक करके बात. ठीक है, चलो लैंग्वेज की बात करते हैं. मेरे किसी दोस्त ने बोला लैंग्वेज. सो व्हेन यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में किस तरीके के एरर्स? तैयब, रोहित, निवास. ओके, चलो मैं बताता हूँ. जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं गाइस, तो पहली चीज तो ये आयुजुद्दीन, है ना, कि हम कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, है ना? तो अगर आप इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें, कोई भी लैंग्वेज है ना, सो लैंग्वेज में क्या आता है? पहला पॉइंट, ग्रामर, राइट? द फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स इन लैंग्वेज इज ग्रामर. नाउ यू वुड बी सेइंग, सर ग्रामर, लोग तो कहते हैं कि ग्रामर जब हम बोलते हैं अंग्रेजी तो उसमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती. तो मैं आपको बताऊं आयुजुद्दीन, कि ग्रामर की जरूरत तो हर एक समय आपको पड़ेगी. बिना ग्रामर के आप कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? अगर आप ग्रामेटिकल आप सही नहीं बोलेंगे तो आपका जो सेंटेंस का जो मायना है ना, वो बदल सकता है. मिसाल के तौर पे, जस्ट मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ. जस्ट अ मिनट, लेट मी एक्सेस द व्हाइट बोर्ड. Where is the white board? चलो मैं यहीं पे लिख के दिखाता हूँ आपको. यस, टेक्स्ट. देखो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ. इधर गया. Now guys, can anybody read and tell me? क्या मुझे बताएगा क्या लिखा है आपने? Can anybody tell me क्या लिखा है आपने? Yes, happy birthday 35th हबी. So इसका मायना क्या हुआ? Yes, मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, राइट? आज उसका 35वां जन्मदिन है. उसकी बीवी ने सोचा कि उसको सरप्राइज देंगे, तो उसकी बीवी गई बेकरी स्टोर. उसने बेकर को बोला कि भैया, आई वांट यू टू प्रिपेयर अ केक, प्रिपेयर अ चॉकलेट वनीला केक, एंड प्लीज एंश्योर दैट यू राइट हैप्पी बर्थडे 35th हबी ऑन टॉप, राइट? तो वो केक लेकर आई, और जब हस्बैंड शाम को घर वापस आया तो उसको सरप्राइज देने की उसकी आंखें बंद कर ली और बीवी उस रूम में लेकर गई. और जैसे बोला सरप्राइज, हस्बैंड केक के ऊपर ये कैप्शन पढ़ के हैप्पी बर्थडे 35th हबी पढ़कर बेहोश हो गया. क्यों बेहोश हो गया? क्यों बेहोश हो गया? बिकॉज वो ये सोचने लगा कि अगर वो 35वां पति है तो इसके पहले 34 और कौन कौन थे, राइट अब्दुल्ला? यस, हैप्पी बर्थडे 35th हबी. सो आप देखो, ये आप में से बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में, बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाए. एवरीबॉडी इज लाफिंग, यू सी, एवरीबॉडी इज लाफिंग, राइट? शुरुआत में आप में से कुछ लोग समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में आपने ध्यान दिया. तो अब आप ये सोचो, मान लो आप किसी कंपनी में आप मेल लिख रहे हो, है ना? आप
अपने किसी बॉस को या फिर किसी और मेल या फीमेल एम्प्लॉय है, आप उसको ये लिखना चाहते हो, है ना, तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ होगा। सो एक 35th कहाँ आना चाहिए, रोहित, अवधेश, क्यामुल, नदीम, कहाँ आना चाहिए आप 35th? लिख कर बताओ, चैट ऑप्शन में लिख कर बताओ, चैट ऑप्शन में लिख कर बताइए मुझे, चैट ऑप्शन में लिख कर बताइए, अरे लिख कर बताइए। करेक्ट प्रिंस, हैप्पी 35th बर्थडे, हैप्पी, एब्सोल्युटली करेक्ट चंदन, यस तैयब, बिल्कुल सही, राइट। इट शुड बी हैप्पी 35th बर्थडे, हैप्पी, हैप्पी और बर्थडे के बीच में 35th आना चाहिए, राइट। तो आप देखो, हैप्पी 35th बर्थडे हैप्पी इज करेक्ट, बट हैप्पी बर्थडे 35th हैप्पी इज इनकरेक्ट। बड़ा छोटा सा ग्रामेटिकल एरर है ये, है कि नहीं बिलाल, राजनिवास, सदिक, एरर छोटा है या नहीं? यस, राइट। बट परिणाम कितना भयानक है, राइट। इफ यू सी द रिजल्ट इज वेरी वेरी डिजास्टर्स। एरर छोटा है लेकिन परिणाम बहुत बहुत भयानक है, राइट। सो गाइस, you all need to understand that whenever you communicate, you have to ensure that you know what, avoid grammatical error. हो सकता है कस्टमर और उन कंपनी प्रोफेशनल्स के बीच ग्रामेटिकल एरर हुआ हो, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हुआ हो, राइट। एक ये वजह हो गई, ठीक है। अब दूसरी क्या वजह हो सकती है, दूसरी क्या वजह हो सकती है, चलो मैं दिखाता हूं। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम कैन बी pronunciation. Pronunciation can also be a problem. Ayazuddin Govinda, can you tell me how? Yes, Zishan, you can call them communication blocks, communication roadblocks, communication barriers, right? There are a lot of words that you can use. Yes. So now, guys, now see, pronunciation can also be a barrier. How? Let me tell you. मिसाल के तौर पे मैं 1.5 साल पहले जब मैं पटना आया था, मुझे याद है 26 नवंबर को मैंने फ्लाइट ली थी पटना से कोलकाता की, और फिर कोलकाता से मैं गया था बैंकॉक, राइट। एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल थी जहां पर मेरी बुक को टॉप 10 बुक्स ऑफ 2019 इन एशिया में शामिल किया गया था। वो लास्ट टाइम था जब मैं पटना गया, उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया, राइट। सो गाइस, मैं जब पटना से जब मैं कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर एक लड़की थी जो मुझे जानती थी, है ना। अगर आपने मेरा जोश टॉक्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिएगा, यू विल गेट टू नो दैट ऑलमोस्ट 7 मिलियन पीपल, 70 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, राइट। तो उसने भी देखा था। तो मैं जब वहां कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा तो वो लड़की मिली मुझे और उसने बोला कि सर, आई नो यू हैव वॉच्ड योर जोश टॉक्स वीडियो, सो शी वाज आस्किंग मी फॉर माय ऑटोग्राफ, है ना। सो आई आस्क्ड हर व्हाट इज योर नेम, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला सर माय नेम इज ओनोना, राइट। She said, okay, Yusuf, you watched my Joe Stocks. Okay, wonderful. Glad to know. Right. So I asked her, Beta, what is your name? She said, Sir, my name is Onona. Now, can you guess? उसका नाम क्या था? अब आप तो जानते हो बंगाल में लोग कैसे बोलते हैं, अविनाश को अविनाश, है ना। तो उसने अपना नाम बताया ओनोना। So can you tell me what was his name? Absolutely correct, Ali, अनन्या, राइट। अब मैं नहीं समझ पाया, है ना। मैं पूछा, I'm sorry, I didn't get better. What is your name? Can you please tell me? 3 से 4 बार पूछने के बाद मैंने बोला, Can you tell me your spelling? है ना। तब फिर मैंने उसको बोला, बेटा your name is अनन्या, right? She said, yes sir, my name is ओनोना, right? तो आप देखो, जबकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, सही प्रोनाउंसिएशन वो अनन्या है, ओनोना नहीं, राइट। क्योंकि वहां की जो लहजा है, जो एक्सेंट है वो वैसा है, इसलिए ओनोना, राइट। अभी जैसे हम यहाँ परसों बोलते हैं तो बंगाल में क्या बोलते हैं, पोरसो, राइट, पोरसो, राइट। यू सी इन फैक्ट इन बिहार itself, राइट। आप देखो अगर किसी का नाम अविनाश है ना, तो शायद उसको अभिनाश बुलाएंगे, है ना, या फिर कहीं कहीं बोलेंगे अविनाश, या फिर कहीं बोले अविनाशवा, right? So you will see these accents, right? आप हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी जाएं, आपको हर 50-60 किलोमीटर की दूर पर आपको लहजा, आपको भाषा में थोड़ी फर्क आपको जरूर मिलती है। सो प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। अब आप देखो, अगर वो लड़की मान लो ओनोना बोलती, अगर मैंने उसका स्पेलिंग ना पूछा होता तो शायद मुझे पता ना चलता, मैं तो ओनोना लिख कर आता, राइट। अगर मान लो आप में से किसी का नाम अविनाश है और आपने मुझे बोला सर माय नेम इज अविनाश, अविनाश,
तो मैं क्या लिखूंगा, AVINAS, राइट, लेकिन आपके एस के बाद एच भी है ना. सो प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड इन प्रोनाउंसिएशन. आपको इंश्योर करना होगा कि आप MTI, दैट इज MTI, दैट इज व्हाट टू से, मदर टंग इन्फ्लुएंस, है ना. जैसे आप वेरी बोलते हैं, है ना, वेरी गुड, है ना, तो वो वेरी होता है, तो ये क्या है, इसको हम MTI बोलते हैं, ठीक है ना. सो वन मस्ट अवॉइड MTI, वन मस्ट ensure that he uses correct pronunciation. अब आप देखो, या थैंक यू रमेश, थैंक यू, राइट. अब आप देखो, ये वैन और वैन दो वर्ड्स हैं, VAN और दूसरा WN. पहले वैन का मतलब क्या हुआ, गाड़ी, लॉरी, और WN का मतलब क्या हुआ, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना. तो अब मान लो मुझे ये दोनों वर्ड्स यूज करने हैं, आपको क्या लगता है, डू यू थिंक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ द वर्ड्स आर सेम? व्हाट डू यू थिंक? Pronunciation of both the words are same, guys? What do you think? Yes or no? Correct. The pronunciation for both the words are different, है ना. तो अब आप देखो, अगर कोई वर्ड, रोहित, अगर कोई वर्ड V से शुरू हो रहा है, सोनू, V से, राइट, तो उसका टेक्निक क्या है प्रोनाउंस करने का? If a word starts with V, then the technique of pronouncing those words are that your upper teeth should touch your lower lips. Your upper teeth should touch your lower lips. अगर आप V से कोई वर्ड शुरू हो रहा है, तो आपके ऊपर का दांत आपके नीचे वाले होठों को टच करना चाहिए. देखो कैसे, मैं कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूं, वैन, विकी, विक्ट्री, वेनेजुएला, राइट, वैन, विक्ट्री, वेनेजुएला, Victoria, right? So if a word starts with V, the technique of pronouncing those words are that your upper teeth should touch your lower lips, right? और अगर कोई वर्ड W से शुरू हो रहा है, तो आपका मुंह का जो आकार है वो गोला हो जाएगा. अब आप देखो कैसे, वैन, वर्ल्ड, व्हाट, व्हाई, वॉशिंगटन, वजीर, वाहिद, right? So this is the difference. If a word starts with W, your mouth formation goes round, right? War, what, why, when, world, who, Washington, right? So this is what the difference. Now see, I'm going to use both the words VAN and WAN in one sentence. आपको ये बताना है, अगर आपको लगता है मैंने पहला वाला यूज किया VAN, तो आप बोलेंगे 1. अगर आपको लगता है मैंने दूसरा यूज किया WAN, तो आप बोलेंगे 2. Is that clear? Is that clear? Yes or no? Yes. All right. तो चलो मैं यूज कर रहा हूं दोनों वर्ड्स को, और आपको बताना है, अगर मैंने पहला यूज किया VN, तो आप बोलेंगे, लिखेंगे फर्स्ट. अगर आपको लगता है मैंने WN यूज किया, तो आप लिखेंगे 2. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ यू सी, माय वैन हैज डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम. नाउ सी, majority of your writing 2, so absolutely correct, it is 2. फिर से देखो, my van has discovered a problem. Correct, the first one, बिल्कुल सही. चलो फिर से देखो, my van has discovered a problem. बिल्कुल सही जवाब, first one, right. फिर से देखो, my van has discovered a problem. Correct, first one, right. Now फिर से, my van has discovered a problem. बिल्कुल सही जवाब, the second one, right. Now see, everybody is aware of, अब आप सबको पता चल गया, right. In case, अब देखो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है रमीज, है ना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आदिल, जो बड़े कंफ्यूजिंग है. तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एज ए कम्युनिकेटर आपको क्लैरिटी देना चाहिए. मान लो आपने यूज किया, माय वैन हैज डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम, है ना, तो उनको बोले, गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट VAN, मैं लॉरी वाले वैन की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट WAN. तो ये क्लैरिटी उसी समय तत्काल आप सबको दे दो, ताकि किसी के दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए, राइट. सो ग्रामर कैन बी अ प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन कैन बी अ प्रॉब्लम. और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वोकैबुलरी. वोकैबुलरी मतलब, if you are using high contextual vocabulary, high contextual vocabulary का मतलब मेरे दोस्त, एक मिनट guys, yes, so high contextual vocabulary का मतलब होता है, just yes, high contextual vocabulary का मतलब होता है वो vocabulary जो हम आमतौर पे जल्दी यूज नहीं करते. हाई फाई वर्ड्स का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, राइट. प्लीज इंश्योर दैट यू यूज colloquial vocabularies, conversational vocabulary. वो vocabulary यूज करें जो बहुत आसानी से लोगों को समझ आ सके, राइट. आसान वाली vocabulary यूज करें जो लोगों को आसानी से समझ में आ सके. बहुत लोग समझते हैं
कि हमने हाई फाई यूज कर देंगे ना अगर हम, तो हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। अरे बिल्कुल नहीं इंप्रेशन अच्छा बनेगा दोस्त। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो समझ नहीं पाया ना, तो क्या फायदा है? सामने वाला तो आपकी बात समझ में नहीं आया, समझ नहीं पाया, तो ऐसे वर्ड्स यूज करने का फायदा क्या हुआ? वो वर्ड यूज करें जो आप यूज कर सकते हैं ना। जैसे मान लो आपको कहना है कि बी प्रैक्टिकल इन नेचर, है ना। अब आप प्रैक्टिकल की जगह कह रहे हैं बी प्रैग्मेटिक इन नेचर, है ना। तो जाहिर सी बात है कोई समझ नहीं पाएगा। फिंगर एंड टो इज डिफरेंट, राइट? यस। सो आसान वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें। और क्या हो सकता है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कस्टमर था हो सकता है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, इस वजह से दिक्कत आया हो। या फिर उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, कभी कभी होता है ना, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है बट यू फेल टू एक्सप्रेस, यू फेल टू प्रेजेंट। हो सकता है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है लिसनिंग इश्यू, है ना। उसने कहा कुछ और हो, उसने सुना कुछ और हो, राइट। एक और प्रॉब्लम वो क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर। यू सी प्रिंस राहुल, क्यामुद्दीन, निशा, श्वेता, प्रियंका, आप सब जब आप कभी कपड़े वपड़े खरीदने जाते हो मॉल वगैरह, मॉल में तो नहीं और भी कहीं छोटी दुकानों में, है ना, तो आप देखिए बहुत सारे सेल्स पर्सन आपको क्या करेंगे, आप उनको बोलोगे कि भैया देखो हमें ये कपड़ा चाहिए, ये फैब्रिक चाहिए, और उसका जो कपड़े का जो मटेरियल होना चाहिए ना ऐसा होना चाहिए, है ना। आप ये बोल रहे हैं लेकिन वो आपको वो नहीं दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है? जो उसके पास बेस्ट अवेलेबल है वो दिखा रहा है ना। आप उसको बार बार कहते हैं अरे भैया हमको ये नहीं चाहिए यार, हमको कुछ और चाहिए। तो फिर वो क्या कहेगा दुकानदार? अरे भैया कहाँ से आए हो आप? दिन भर में 100 लोग आते हैं, 100 में से 90 यही लेकर जाते हैं, आप पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है आप पर? वो साइकोलॉजिकल बैरियर अप्लाई कर रहा है। वो आपकी नहीं सुन रहा है, वो अपना बैरियर लगा रहा है दिमाग में कि हम जो उसको दिखाएंगे ना वो बेस्ट दिखाएंगे, सामने वाले की हमको सुनना ही नहीं है, राइट। तो ये होता है। सो जरूरी क्या है कि सामने वाले को सुने, राइट, और समझें। उसके बाद आप जो है आप जो भी आपको करना है वो करें। मिसाल के तौर पे प्रिंस राहुल, जान लो, मान लो कि निशा ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया, है ना, कि सर आइए और हमारे घर पे चाय कॉफी पी कर जाइए। तो मैं गया निशा के घर, राइट। और निशा ने मेरे को बोला कि सर कॉफी के साथ और क्या लेंगे? तो मैंने बोला बेटा जो भी लाना ले आओ। तो उसने बोला सर मैं मैगी ले आऊं, नूडल्स बना के ले आऊं क्या? मैं बहुत अच्छी नूडल्स बनाती हूँ। तो मैंने बोला प्रिया बेटा, अच्छा ठीक है बेटा बना लो, लेकिन प्रियंका उसमें थोड़ा ये मसाला डाल देना, उसको ऐसे पकाना, उसमें ये वाला भी मसाला डाल देना, ये डाल देना, वो डाल देना, ये मैं बोला। और तभी निशा ने बोला बस बस सर, बस बस, मैं तो समझ गई सर। सर मैं आपको बताऊं, इस पूरे सोसाइटी में ना हर कोई मेरे नूडल्स का जो दीवाना है सर, है ना। और मैं जो आपको नूडल्स बना के दूंगी ना आपको भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू निशा, है ना। तो जब निशा जब नूडल्स बनाकर लेकर आई, मुझे अच्छा तो लगा बट उतना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्यों नहीं अच्छा लगा निशा? वैसे मुझे पता है निशा जो भी बना कर देंगी यकीनन बहुत बहुत अच्छा बनाएंगी, है ना। बट ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो बताओ मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा उतना? कैन एनीबॉडी टेल मी क्यों अच्छा नहीं लगा? करेक्ट, माई चॉइस इज डिफरेंट। विवेक बिल्कुल सही, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट नहीं था। अच्छा चलो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रियंका ने क्या किया? क्या प्रियंका ने मेरी पूरी बात सुनी? सॉरी, क्या निशा ने मेरी पूरी बात सुनी? Right, correct. Because Nisha did not listen my entire requirement, right? निशा ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और उन्होंने साइकोलॉजी अप्लाई कर लिया कि अरे बस बस सर, मैं जानती हूँ आपको कैसा मैगी चाहिए, है ना। मेरी पूरी बात सुने हुए निशा ने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया और हो क्या गया? मैंने खाया लेकिन बड़े भारी मन से। राइट। सो नाउ साइकोलॉजिकल बैरियर समथिंग व्हिच वी शुड नॉट अप्लाई। जरूरी क्या है कि पूरी बात सुने, समझे और उसको वही चीज दें। अगर आपको अपने तरफ से अगर आपको कुछ आपको सजेस्ट करना है, जैसे मैंने निशा को बोल दिया, अब उसके बाद निशा ने मेरे को बोला सर क्या मैं उसमें थोड़ा चीज डाल ऐड कर दूं? सर क्या मैं उसमें थोड़ा बटर ऐड कर दूं? और अगर आप कहें तो सर हाउ अबाउट इफ आई ऐड सम वेजिटेबल्स, बीन्स, पीस, विल दैट बी ओके? है ना। तो मेरी बातें सुनने के बाद अगर निशा अपनी बातें रखे और अगर मैं कहूँ हाँ हाँ बेटा बिल्कुल वो करके दे दो, तो फिर क्या बात है ना। फिर तो मुझे बहुत बेहतरीन डिश निशा की तरफ से मिलेगी। खैर, जब भी कभी पटना या फिर कभी भी आऊंगा तो निशा आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट यू नो दिस नूडल्स फ्रॉम यू, राइट।
Okay, so guys, is this clear? Psychological barrier is clear to everybody? That would be additive. Pooja, wonderful. Okay, psychological barrier is clear? Correct. So now psychological barrier is also, psychology is also one of the biggest barrier, right? So सामने वाले को सुनिए, है ना? कोई धारणा अपने आप से मत बनाइए, बहुत बहुत जरूरी है, right? Oh my God, अभिषेक देखो क्या लिख रहा है, लड़कियां सर ऐसे भी नहीं सुनती. Oh my God, no personal comments on this. Okay, so now guys, ये कुछ problems हो सकते हैं. अब आपको क्या समझ में आया? That if you want to be a good communicator, you have to work on your grammar. I mean, you have to avoid grammatical error. Number two, you have to ensure that you use correct pronunciation. Number three, right, easy vocabularies का इस्तेमाल करें. Number four, concept clear होना चाहिए. Number five, presentation बहुत अच्छा होना चाहिए. Number six, listening आपकी कमाल की होनी चाहिए. Number seven, psychological जो धारणा बना लेते हैं, है ना, उसको दूर करना है. वी शुड नॉट अप्लाई दैट. नंबर 8 गाइस, एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट फॉर्म्स को अवॉइड करेंगे, है ना. मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं गुलशन मीट मी टुमारो एट सीबीआई ना, तो कौन सा सीबीआई भाई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना. या फिर मैं प्रीति को बोल रहा हूं कि प्रीति मीट मी टुमारो एट एचपी ऑफिस. एचपी ऑफिस, एचपी ऑफिस कौन सा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला या फिर एचपी कंपनी का कोई ऑफिस है, कौन सा, है ना. सो इट इज अभिषेक, बट गर्ल्स आर बेटर कम्युनिकेटर देन बॉयज. ओ माय गॉड, देखो जंग शुरू हो गई. लेट्स नॉट डू दैट, राइट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट पूजा, राइट. यू विल बैक इट. सो दैट इज व्हाई यू मस्ट अवॉइड एक्रोनिम. शॉर्ट फॉर्म्स को बिल्कुल आप अवॉइड करें, ठीक है. नाउ गाइस, लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी. एक छोटा सा रिकैप. मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए हैं. इफ यू वांट टू बी गुड कम्युनिकेटर, यू हैव टू वर्क ऑन दिस एरियाज. एक लाइन में जरा चैट ऑप्शन में लिखकर मुझे बताओ, व्हाट आर दोस 8 पॉइंट्स दैट आई हैव आस्क्ड यू ऑल? व्हाट आर दोस 8 पॉइंट्स? एक लाइन में लिखकर बताओ. ओके, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है. व्हाट एल्स? अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स, व्हाट एल्स? नॉर्मल वोकैबुलरी, यस, शुड बी अ गुड लिसनर. डोंट से नॉर्मल. नॉर्मल मत कहो भाई, है ना, बोलो कॉन्वर्सेशनल वोकैबुलरी. Yes, no acronyms, absolutely correct. Yes, use correct pronunciation, right? Avoid grammatical error. Yes, presentation आपका अच्छा होना चाहिए. Okay, what else? What else? एक और बैरियर बताया, वो नूडल्स वाला एग्जांपल दिया मैंने. Yes, Rekha. Okay. Yes, do not apply. Yes, correct, correct. Okay, wonderful. That's right. Psychology हमें नहीं अप्लाई करनी चाहिए. I mean उसको एक उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी. Okay, I'll tell you what is that. All right, great, great, guys. So almost everybody has understood all these things, right? So guys, we all need to work on all these things, right? और एक बार जब आपकी जब एक फुल फ्लेश ट्रेनिंग जब आपकी शुरू होगी, तो इन सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे, राइट? सो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, राइट? सो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया गाइस, एक बार आपको दिखा देते हैं, राइट? देयर आर टू काइंड ऑफ बैरियर्स. वन इज लिंग्विस्टिक बैरियर, जो हमें अवॉइड करना है. जस्ट अ मिनट, जस्ट
Yes. So guys, these are the two barriers. I mean, one is linguistic, जिसमें हमने discuss किया that you must avoid grammatical error, right? You must not use high contextual vocabulary, and of course, ambiguity in expression, which is something which you should avoid. यानी कि lack of concept, right? Mispronunciation नहीं होना चाहिए, accent वही pronunciation जो हमने बताया आपको MTI, और ये acronyms नहीं होना चाहिए. दूसरा क्या? Right? Psychological barrier में perception है ना, हाँ perception वही psychological barrier. परसेप्शन हमें अवॉइड करना चाहिए. एक ही होता है आई सी व्हाई आई वांट टू सी एटीट्यूड, ये नहीं होना चाहिए. एंड यू विल सी लॉट ऑफ पीपल, यू नो व्हाट, दे मेक एक्सेसिव नोट, राइट? सो एक्सेसिव नोट टेकिंग शुड आल्सो नॉट हैपन. उसके बाद लैक ऑफ पॉजिटिव अप्रोच एंड यस लिसनिंग, राइट? सो दीस आर सम बैरियर्स. सो नाउ व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर गाइस? एन एक्टिव लिसनर, right? If you're an active listener, you of course are a good communicator. You need to be an effective presenter. Only then you will be called as a good communicator. You should be a good quick thinker, and you should be able to hold the audience. So these are points which are very, very important, right? Now, guys, a small homework. What is that? Just a minute. Yes, अब एक छोटा सा आपको homework दे रहा हूं मैं, right? Now let me share the screen. Just a minute, guys. Give me 1 minute. Let me share you one more screen. Right? एक और screen आपको share कर रहा हूँ. Just give me one. Okay. All right. Fine. I'll give you the assignment in a short while, but उसके पहले एक सवाल कर लेते हैं on listening. Are we all ready? Are we all ready? Are we all ready to take a question on listening? Okay, wonderful. Now see, it is a question based on listening, right? और आपको लगेगा कि ये सतीश सर. हाँ जी. अच्छा, sorry, I'm muted. Okay, I'm sorry. Yes. So guys, I'm going to ask you a question. You'll find it mathematical, but you know what? It's not mathematical, right? It is based on listening. So guys, please do not go on mathematics. Clear hai? Let me make my instruction very clear back again. The question is not a mathematical question. It is based on listening. अगर आप बहुत अच्छे से सुनेंगे तो यकीनन you'll be able to give me the right answer. And if you do not listen it clearly, then of course you'll not be able to give me the right answer, right? So chalo, let's get started. Are we all ready? Are we all ready? Just write yes or no. Okay, wonderful. So guys, here we go. A man had to go to London. A man had to go to where? A man had to go to London. A man had to go to London. Yes, correct. London, right? Uske aage. A man had to go to London. He went to the airport. Where did he go? Where did he go? Airport. Chalo, fir se. A man had to go to London. He went to the right. A man had to go to London. He went to the airport with his wife and 3 kids. With whom did he go? With whom did he go? With whom did he go? Okay, 1 wife and 3 kids. Correct. His all 3 kids had a bag. His all 3 kids had a bag. Right? His first kid had a bag in which he had 7 cats. How many cats? How many cats? 7 cats. Which kid
Which kid? Which kid? The first kid. Correct. Now, the second. The second kid also had a bag in which he had 7 kittens. How many kittens? 7. Which kid? Which kid? The second kid. Wonderful. The third kid also had a bag in which he had 7 puppies. How many puppies? How many puppies? Which kid? The third kid. Now the question is, how many of them went to London? How many of them went to London? Mark your responses. How many of them went to London? 5, 26, 5. Oh my God. You know what? In the all of them, oh my God. See, in the very beginning itself, मैंने आपको अपना instruction बहुत clearly बता दिया था. It's not a mathematical question, right? आप 26 लिख रहे हो तो ये तो बड़ा आसान है. 7 into 3, 21. एक husband 22, एक बीवी 23, 3 बच्चे 26. अगर ये इतना आसान सवाल होता तो मैं क्यों पूछता? कुछ लोग 5 लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं everybody, right? Now guys, do you want me to repeat? कुछ लोग लिख रहे हैं nobody. Okay. अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं? There are few who are writing only one. That is the man went to London. Okay, wonderful. चलो, can anybody justify how come man went to London? क्या मुझे कोई बताएगा कि how come man went to London? Can anybody justify? Can anybody justify? क्या कोई बताएगा मुझे कैसे पता चला आपको कि only man went to London? Because he only go to airport. No, Ali. मैंने तो बोला a man had to go to London. He went to the airport with his wife. उसके बीवी बच्चे भी गए एयरपोर्ट. क्या कोई मुझे बताएगा कैसे पता चला कि वो एयरपोर्ट सिर्फ आदमी लंदन गया? Yes, Amina. Okay, wife and sons went to drop him, but how did you come across the answer? आंसर कैसे पता चला बताइए? करेक्ट, क्योंकि पहली लाइन में ही मैंने बोला था a man had to go to London. Yes, Rajat, absolutely correct. मैंने शुरुआत में बोला था a man had to go to London, तो गया कौन? Only the man, right? So guys, you see, आप में से अगर 100 बच्चा था तो शायद 100 में से 10-12 लोगों ने सही जवाब दिया, बाकियों ने नहीं, right? So क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है और जवाब देना है. अगर कोई डाउट हो तो उस पर क्लैरिटी बार बार लीजिए, right? Yes, Preeti, because I said that just a man had to go to London, right? Absolutely correct. Absolutely correct. So now guys, अब आगे बढ़ते हैं. Now I'm going to take you through a different, what to say, one more question, guys. But this question has 2 answers. How many answers? How many answers, guys? Two answers, right? Okay, great, 2 answers. Now you see, आपको ये तय करना है कि पहला जवाब कौन सा दें और दूसरा जवाब कौन सा. ठीक है ना? क्या तय करना है आपको? पहला जवाब कौन सा दें और दूसरा कौन सा. ठीक है, चलो, रेडी एवरीवन? ये भी लिसनिंग पे बेस्ड है. रेडी एवरीवन? राइट, यस, ओके. सो चलो, हियर वी गो. नाउ सी, Abdullah General Store sells pastries, patties, ice cream, cream roll, burger, hot dog, paneer roll, candies, chocolates, balloons. A customer named Sadiq approaches Abdullah General Store on Saturday to purchase a packet of chips, but store remains closed on Saturday. Answer. Now you'll be saying, so what is the question, right? आपके जहन में सवाल हो रहा है कि sir, what is the question? Do you want me to repeat? Yes. Okay. चलो फिर से सुनो. Abdullah General Store sells patties, pastries, ice cream, cake, hot dog, paneer roll, burger roll, litti chokha, candy, ice cream, lollipop, chocolates. A customer named Sadiq approaches Abdullah General Store on Saturday to purchase a packet of chips, but store remains closed on Saturday. Answer. Okay, तो पहला जवाब क्या होगा? He does not sell chips या फिर Saturday remains closed? Ali, Nisha?
अच्छा, पहला जवाब अब्दुल चंदन के हिसाब से, ही डज नॉट सेल चिप्स। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, द स्टोर रिमेन्स क्लोज ऑन सैटरडे। क्या ये पहला जवाब होना चाहिए या फिर ये पहला जवाब होना चाहिए कि स्टोर सैटरडे को बंद रहती है? पहला जवाब क्या होगा? स्टोर सैटरडे को बंद रहती है या शॉप रिमेन्स क्लोज ऑन सैटरडे, ये पहला जवाब होगा, राइट। और दूसरा, दूसरा जवाब, दूसरा जवाब नो चिप्स, राइट। सो मैं आपको बता दूं, गलत जवाब दिया आपने। द फर्स्ट आंसर शुड बी दैट अब्दुल्ला डज नॉट सेल चिप्स। मान लो सादिक संडे को गया चिप्स लेने, मंडे को गया, ट्यूसडे को गया, वेडनेसडे को गया, थर्सडे को गया, फ्राइडे को गया, तो क्या सादिक को चिप्स मिलेगा? क्या सादिक को चिप्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला चिप्स तो बेचते ही नहीं है। तो जवाब क्या होना चाहिए कि भाई सादिक, देखो पहली बात, अब्दुल्ला चिप्स नहीं बेचते, और दूसरी बात, सादिक की दुकान शनिवार को, अब्दुल्ला की दुकान शनिवार को बंद रहती है, राइट। सो नाउ दिस शुड बी द क्वेश्चन, राइट। सो नाउ गाइस, listening is very very important. Yes or no guys? Yes or no? Yes, right. Now guys, मैं आपको एक और केस स्टडी दिखाने जा रहा हूं आपको, यू नो व्हाट, कम्युनिकेशन पे, राइट। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? आई होप यू गाइज आर नॉट गेटिंग बोर्ड, राइट? आर यू ऑल एंजॉयिंग दिस सेशन? Yes, okay. Just a minute. Just a minute. Yes, so guys, here we are. Mm, just friends. Okay, yes. So now, guys, can you see my screen? Can you see my screen? Can you see my screen, guys? Yeah, can you see it? No? Just a minute. Okay, now can you see it? Now can you see it? No? Okay, just a minute. एक मिनट दीजिए, मैं जरा अपना राउटर ऑन ऑफ करूं. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Yeah, just give me 1 minute. All right, guys, now you see. Now, can you see the screen? Okay, okay, just a minute, just a minute.
So voice is not audible. हेलो सर का वाईफाई इशू थोड़ा सा हो गया है, ठीक है, तो 5 मिनट पॉज ले लीजिए आप लोग, तब तक में भी वो रिकनेक्ट हो जाए, ठीक है। Okay, sir. 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, टिल 11 वी विल रिकनेक्ट। Okay, sir. Thank you, sir.